Good morning, students. Actually, there was a network issue. Because of that, Cisco WebEx was not responding. We were a bit late. Now, we have completed with the VHDL programming. Can anyone tell me who was in the last lab कि हम कहाँ पर थे? Yes, please. किसी को भी नहीं पता है क्या बेटा? वेवफॉर्म और इस टाइम करेंगे. नेहा, तुमने लास्ट लैब अटेंड नहीं करी थी क्या बेटा? Okay, fine. Actually, in the last lab, सारे ही नए स्टूडेंट्स हैं. उस दिन तुम में से कोई भी नहीं था. मनदीप, तुम भी नहीं थे? You were not there in the last lab. Okay. Now, see, particularly, we have started with the Tanner EDA practical. And in that particular, I told to take the screenshot of this schematic and the waveform to put on your file. It's a hard copy. ठीक है. और इसमें जो है हम schematic डिस्कस कर चुके थे NAND गेट का. So I am not discussing it again, and we are moving for the NOR gate. Same terminology is there, you will understand. But yes, of course, those students who are not there, for them I am just giving 2 minutes for your information that first practical of Tanner EDA is NAND gate designing. Software tool to be used में तुम्हें ये सब लिखना है. Tanner tool कौन सा है हमारे यहाँ अवेलेबल 16.2 and it support schematic, layout, wave and Tanner. ठीक है. In theory, you need to little bit explain regarding NAND gate and truth table of NAND gate. Like if you compare this truth table with the AND gate, ठीक है. Boolean expression for the two input NAND gate is going to be this. Procedure I already been discussed. First of all, you need to make the schematic as edit and verify the output waveform on WEdit. Extract the schematic and store it in the another location. Now you need to open the LEdit, create a new cell और उसे हमें .sdl या ये सारी जो प्रोसीजर है you need to write in each program of Tanner EDA. Then do necessary connection as per the designing. Now name the port and check the design for the DRC rule. Finally, locate the destination file in the setup, extract window and extract the layout. And include the library and print voltage statement in the netlist which is obtained. Verify the layout design for WEdit. ये यहाँ तक की प्रोसेस रहती है इसमें. ठीक है. जब हम DRC चेक करते हैं in that time we come to know whether there is issue in a connections or not. Error जैसे VHDL में आती थी वैसे नीचे लिखी हुई आ जाती है. Fine. And in that you need to just sort out those error. Then finally you can get the verified waveforms. ठीक है. ये schematic designing है. और ये ब्लैक बैकग्राउंड में थोड़ा डार्क दिख रहा था तो मैंने इसको वापस से इसका बैकग्राउंड चेंज किया. तो यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और इसको मैंने डिटेल में
लास्ट उसमें बताया भी था, दीज आर माई 2 इनपुट्स। ये हमने सीमॉस से डिजाइनिंग करी और ये दो, ये पीमॉस आ गए तुम्हारे। सेम इनपुट विच आई एम सी, इनपुट 1 हियर, इनपुट 1 हियर, इनपुट 2 हियर, और इस लाइन से ये इनपुट 2 हियर। ठीक है, वोल्टेज वी आर अप्लाइंग एंड वी आर गेटिंग प्रिंट आउट फॉर द आउटपुट। ठीक है, एंड W जो है इसमें 1.5 माइक्रो है, L जो है 250 नैनो है, TW जो है 1.5 माइक्रो है। Delia, you took the screenshot? Yes, Ashwini, Achal, Mohit, Praveen. ठीक है, टी एडिट ये सबका स्क्रीनशॉट ले लो। टी एडिट में ये सारे डिटेल्स, ये सब तुम्हें एक्चुअली बस तुम्हें ऑब्जेक्ट, टूल टू बी यूज एंड थ्योरी, ये तुम्हें हाथ से लिखना है। रिमेनिंग यू नीड टू पेस्ट द प्रिंट आउट हियर। लाइक फर्स्ट वन विल बी द स्कीमेटिक, then this tSpice file, it is continue here। tSpice में जो चेंजेस होते हैं वो यहाँ होते हैं जब रियल एग्जीक्यूट हम करते हैं। इन दैट टाइम ये प्रिंट वी इन वन इन टू और ये आउट, तो इनकी कुछ वैल्यूज में कई बार हमें चेंज यहाँ पर नहीं, यहाँ करना पड़ता है कि V1 V2 जो है उसको मैं VDD ग्राउंड और किस तरह से क्या दे रही हूँ। बाकी ये जो है MM1 MM2 MP, देखो जो NMOS का ट्रांजिस्टर है दैट इज नोन बाय MN। इफ आई एम यूजिंग 10 ट्रांजिस्टर सो इट विल बी डिनोटेड बाय 1 2 till 10, MP1 MP2। तो ये PMOS के लिए है, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए थोड़ा बहुत। दैट इज W is 1.5, L is 250, AS is this, AD is this, these are the configuration। एंड सिमुलेशन टाइम में जैसे हम वहां पर वेवफॉर्म मैनुअली करते थे VHDL में, हियर यू नीड टू पुट डॉट ट्रांस 10 ns 100 ns। ठीक है, एंड दिस इज अ वेवफॉर्म। ये लास्ट लैब जिन बच्चों ने अटेंड करी थी, दैट दिस वाज द लास्ट ऑफ कंटेंट। जस्ट तुम लोग सारे ही नए थे इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, इसका भी प्रिंट निकालना है। अगेन एंड अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, एंड द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, स्टार्टिंग का सब थ्योरी लिखना है। प्रिंट आउट में तुम्हारा एक तो स्कीमेटिक प्रिंट निकालना है, tSpice फाइल निकालना है और वेवफॉर्म, इसके प्रिंट्स लगेंगे हर प्रैक्टिकल। फाइन, अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू राइट डाउन द रिजल्ट्स। ये रहा, जैसे ये आ गया, इसमें कितना सेटलिंग टाइम लग रहा है, सर्किट हैज बीन सिमुलेटेड, ट्रांजिएंट एनालिसिस हैज बीन डन। ये अपन को हाथ से लिखना है ये वाली चीज। ठीक है, कि सर्किट हमने बना लिया, उसके जो एनालिसिस हैं वो सक्सेसफुली वी हैव डन। That's it, that we have done in our last lab। Actually 2-week gap was there, that's why I just once assure you। Fine, now second practical is to input NOR gate using CMOS logic, obtain the schematic, static and dynamic analysis। So software जो use होगा, here correction is there, that is पहले जब तक ये टूल नहीं आया था तो अब अपन लोग जो है इस पे काम करते थे 13.1 पर, स्कीमेटिक, लेआउट, वेव एंड ट्रेनर रिस्पॉन्स। नाउ नॉर गेट में तुम्हें सिर्फ ये इसका सिंबल बनाना है और इट्स ट्रुथ टेबल शुड बी विथ यू। ठीक है, एंड इफ यू कंपेयर विथ ट्रुथ टेबल विथ दैट और गेट, you will find the output Q is exact opposite of the OR gate। ठीक है, procedure will be same, but once again I am repeating so that you will also yes of course procedure भी अपने को हाथ से लिखना है सबका। Draw the schematic using SEdit and verify output in W। Extract the schematic and store in another location। Means first of all you need to make the diagram,
देन यू नीड टू वेरीफाई इट, फिर हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड वी नीड टू सेव इट इन अनदर लोकेशन. देन अगेन ओपन एल में हम करेंगे. देन यू क्रिएट अ न्यू सेल, open the schematic file which you need to save by .sdl, do the necessary connections as per the designing, then the name the ports and check the design for the DRC rule, locate the destination file in the setup extract and extract the layout, include the library and prints. ठीक है, इसका जो स्केमेटिक है वो ये रहा. दोनों हैं, बनता ऐसा है, लेकिन तुम इसके प्रिंट ऑप्शन में जाके चेंज कर सकते हो. सो सेम है जैसा अपन ने थ्योरी में पढ़ा है. दिस टू NMOSes आर इन पैरेलल. द सेम इनपुट इज कनेक्टेड, इनपुट 2 and input 1 to this. This is my output and I am giving you sufficient time. जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो तो ले लो, साथ में you draw it also. Why it is so? So that you will come to know कि जब हम सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो क्या क्या चीजें आती हैं. CWL और ये TW आ रहा है, और ये प्रिंट वोल्टेज जो कमांड है दैट वी यूज टू गिव वेयर वी वांट प्रिंट और वी वांट आउटपुट वेव फॉर्म. सो ये लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन रहता है, उससे क्लिक करके हम यहाँ लगा दें. ये मल्टी बोर्ड जैसा ही है बट थोड़ा ये एडवांस रहता है. ठीक है, यहाँ हमने 5 MBG की इनपुट दे दिया, यहाँ पर भी दे दिया. ठीक है, you can take the screenshot. I am giving you 2 to 3 minutes to draw it और maximum 5 minutes. But yes, of course, अगर तुम्हारा उससे पहले हो जाता है तो please let me know so that we'll move further. है ना?
ओके आंचल, आई सपोज ऑल मेड इट, और नहीं तो इस वैसे तो प्रिंट लेना है इसका, लेकिन आना चाहिए तुम्हें। और ये देखो यहाँ MN1 लिखा है, ये MN2 है, ये MP1 है, ये MP2 है। फाइन। एस एडिट के बाद टी स्पाइस फाइल है ये, दिस यू कैन नॉट राइट, यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। टी स्पाइस जनरली क्या बताता है, दैट स्पाइस एक्सपोर्टेड बाय विच currently in which port you are working, as edit, export time, design, cell, interface, and remaining informations. From this simulation setting general, okay fine, wait, you take the screenshot if you wish. ठीक है, now after this one is there, यहाँ से हमारा सिमुलेशन जनरल सेक्शन स्टार्ट होता है, दैट इज टेनर EDA टूल जेनरिक 20 nm, जेनरिक 20 nm दिस। नाउ ये जो रहता है स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है, दैट इज अ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। जैसे MN1 है, इट हैज WL M1 S AD PS PD दिस। MN2 जो है उसमें आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, ग्राउंड कौन कौन से टर्मिनल है, व्हाट इज WL M AS AD एंड ऑल। MP1 है, MP2 है, उसमें क्या है। और मेन यहाँ पर हमारी वैल्यू हम यहाँ करते हैं, जैसे फर्स्ट वन है उसको हम DC5 वैल्यू दे रहे हैं, सेकंड को हम ग्राउंड दे रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू है, दैट इज 050, कितने सेकंड के बाद ये चेंज होना चाहिए, तो यहाँ रिटर्न लिखना पड़ता है। तो कई बार तो हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आ जाता है, नहीं तो यहाँ चेंजेस करने होते क्या, लाइक जैसे है ना 050, मतलब कंटिन्यूअसली हम हमारे पास 050 की वेव आनी चाहिए, ठीक है, 5 नैनो सेकेंड हर 5 नैनो सेकेंड के लिए, और ये कब तक चलेगी, 200 नैनो सेकेंड। Now take the screenshot of this. ठीक है, W एडिट में ये वेवफॉर्म, पहले इसका ले लो, फिर ये जो स्टैटिक और डायनामिक एनालिसिस है वो मैं बता दूंगी। यू नीड टू इन्फॉर्म मी वेदर यू डन और नॉट, क्योंकि मैं फिर मेरे स्पीच से क्लिक करूंगी, हो सकता है स्किप हो जाए, इसलिए ऑल्दो आई यूज टू मेंटेन द टाइम। इसका ले लिया हो तो अब लेआउट एवोल्यूशंस में देखो, स्टैटिक और डायनामिक एनालिसिस जो रहता है, दैट गिव्स यू इंफॉर्मेशन दैट हाउ मेनी मॉसफेट्स आर देयर, वोल्टेज सोर्सेज 3 लिए हमने, 2 for input and 1 for output, and sub circuit definition, model definition, computed model, independent nodes and all, ठीक है, एंड टोटल टाइमिंग हमें इतना लग रहा है, तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, एंड द रिजल्ट, द सर्किट हैज बीन सिमुलेटेड एंड ट्रांजिएंट सक्सेसफुल। इज इट क्लियर? नॉर गेट सर्किटरी, इसका और ले लो, उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा तुम्हारा लैब का काम कंप्लीट। तो एक तरह से मानो तुम कि 10 नवंबर तक तुम्हें
10 और 12 नवंबर तक फाइल सबमिट, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो फिर 20 नवंबर आफ्टर दिवाली। विच वन यू आर प्रिफरिंग वो बता देना। और वैसे मेरे ख्याल से 10 नवंबर तक मैं दूंगी, ताकि एक दो दिन जैसे भी रहे तुम लोग करो। whatever will be the last day of practical session, उसके बाद जस्ट ये रहेगा, तुम्हें 10 to 12 days का मैं टाइम दूंगी, ठीक है। You have completed this? नेहा, प्रवीण, वंदना, दिशा, अंकित, ठीक है बेटा। Now our third practical is there, that will start after क्योंकि नेटवर्क वगैरह इशू से मीटिंग तो होनी थी बट हुआ नहीं था, तो एक्सॉर्गेट में थ्योरी तुम्हें बता देती हूँ। इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन से आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस मीटिंग एंड अगेन वी आर ज्वाइनिंग विद इन 2-3 मिनट्स, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके।